Om Shanti. Welcome to Unlimited Yagya. So, हिंदी में बोले, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है. लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है रूपाली बहन? So, this is the golden opportunity for all of us to experience being in the yagya the way Sakar days, when Brahma Baba and Mama used to sit and all Baba's children used to be around them, right? So you see this space here around Didi. This is one and only one chance. If you can sit on the floor, come. This is the very beautiful experience, and come a little closer. And even though some of you are sitting, children, come. Even though you are sitting on chair right now, come up to you. And if you think you can come and sit here, please come. This is a beautiful experience. We are not sitting here for 2 hours now. It's going to be for 1 hour. But come near, it's very near to Didi and it's very special. Really? Nobody can sit on the floor? Okay, keep this. Yeah, not this side. Go that side. Not this way. This way, this side. Rekaban, this side. Can you all go move that side, please? We still have space. No one? Shri Ben, really? Come. Brothers, come on. We have to be children today. Omkar, Adi, come on. That's not for you. The young ones, please. Huh? Okay. So now those all those who need translation in English, please take your headphones. Yeah. That's all. अच्छा, कुर्सी लेके लाल वाली कुर्सी नहीं लानी है. सो जो ग्रे वाली कुर्सियां हैं ना, वो लेके आना है तो आ जाओ जिनको. She's gonna speak in English. Sorry, she's gonna speak in Hindi and translation. Okay, आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं. उठाइए और इधर तक आइए. ले आओ, कोई बात नहीं, रेड ले आओ, बट यहाँ तक, बहुत ज़्यादा नहीं. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आ जाओ आगे, बहुत ज़्यादा नहीं. कोई बात नहीं, ये लाल ले आओ, कोई बात नहीं. इधर इधर इस राउंड को तो. You can come up to this line. Okay. You all have translation?
understand? No? You need translation? No. Okay. ट्रांसलेशन ओके अभी हम सब ऐसे बैठेंगे जैसे कि हम साकार दिनों में पहुंच गए। अपनी कुर्सी को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विल्ट कर लीजिए। निरंजन भाई थोड़ा आगे की साइड आ जाओ ना, आप तो पीछे ही दब गए। थोड़ा सा कुर्सी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। ट्रांसलेशन इज कमिंग। Yeah, just you can tilt your chair if you can't see properly. If you are not able to see because of person in front of you, yeah. If you feel like you want to move chair in a different direction, you can do also to see Didi properly. पारुल बहन, नेहा बहन आगे आओ। आप लोग ऐसे पीछे बैठने के लिए नहीं बुलाया है। शीतल बहन आगे आओ। Nobody's gonna sit in the back. Everyone please come forward a little bit. Come forward. You all don't need to sit in the back. Come little forward. Yeah. So now next 5 minutes, please immerse yourself that we are in Madhuban, sitting in History Hall where Mama and Baba used to sit. And let's remember those early days. And we will have a beautiful song played. It's a very nice Hindi song. It says that those days were very beautiful and now these days are also very beautiful. So let's remember Baba and just let's merge into the real experience of the Yajna and Baba's remembrance. सभी अपना अर्ली डेज जो बाबा के साथ आदि के दिन थे उन दिनों को याद करें। मम्मा बाबा सामने बैठे हैं और जैसे हम हिस्ट्री हॉल में मधुबन में बैठे हैं और हम बाबा की याद में जैसे खोए हुए हैं। ठीक है। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ
अभी थोड़ी देर कैमरा को। ओम शांति। आप सभी माता पिता बाप दादा के अति लाडले, समझ रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं। अति लाड, इधर उधर हिलो नहीं। हाँ इधर उधर देखने की क्या जरूरत नहीं। अति लाडले मीठे मीठे सिकीलते बच्चे, बाबा हम सब बच्चों को प्यार का सागर बाबा है। हर बच्चे से बाबा को बहुत प्यार है। सागर है, सबसे प्यार है। तो कोई प्रश्न पूछते हैं, क्या किसी से ज्यादा प्यार भी है? कम प्यार नहीं है, पर ज्यादा है। देखने में आता था शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में जब आते थे, देखने में आता था कि कईयों से बहुत प्यार है। तो थोड़ा कईयों को होता है ना, क्यों ज्यादा प्यार क्यों है? तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बाबा आपको ज्यादा प्यार करें? किसी ने रोका हुआ है क्या आपको? सागर है, कहते हैं कोई छोटी बोतल लेके जाएगा उतना ही भर के लाएगा। तो जब बाबा से मिलने जाते थे, दिन में कई बार चांस मिलता था, तो ये सोचते थे कि बाबा से क्या बात करेंगे। तो बहुत खुशखबरी लेके जाते थे, अच्छी बात लेके जाते थे। तो कोई बाबा को बातों में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर बाबा ये देखता था कि हमेशा खुशखबरी लेके आती है, ये हमेशा अच्छी बात लेके आती है। हम लोग तो कोई अच्छा गीत होता था, उन दिनों में अपने गीत नहीं थे ज्ञान के ना, तो लौकिक में कोई आसपास ज्ञान के शब्द होते थे ना, तो बाबा प्यार करता था। एक विशेषता, ज्ञान में आने से पहले भी मैंने हमेशा सोचती थी कि माता पिता के सामने सदा मुस्कुराते हुए जाओ। भक्ति मार्ग की आदत है, एक लिस्ट लेके जाते हैं, जैसे सुपरमार्केट जाते हैं ना,
भगवान से ये चाहिए चाहिए। मैं तो ऐसे जाती हूँ खुश संतुष्ट, आप हैं तो क्या सब कुछ हमारा है, आपका नहीं। समझा हमारी फीलिंग, समझे। तो हमेशा ऐसा चेहरा लेके जाओ कि जैसे भाग्य विधाता ने कई बार, कोई होता है ना, कई होते हैं उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, कोई की थोड़ी कम होती है, उनकी दिल अच्छी होती है, नहीं कि कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं जब भगवान बांट रहा था आप कहाँ थे? सुना है ना, गॉड जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बहुत पीछे थे क्या लाइन में? तो सदा ऐसे बाबा के सामने बैठो। देखो आज आप ऐसे बैठे हैं जैसे मधुबन का हिस्ट्री हॉल है, नहीं? मैं जब बाबा के पास पहली बार गई तो मैं 16 साल की थी। यहाँ कौन है 16 साल वाला? 16 ईयर, 18 ईयर, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। 15 आदि 22 लोग हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे बैठी जैसे 1 2, ये भाई बैठे ना, तो ऐसे बैठी थी। तो बाबा ने, उठो इधर बैठो, तो मैं बैठ गई। शिव बाबा आएगा ब्रह्मा बाबा में मुरली चलाने, तो एकदम बाबा की भ्रिकुटी पर देखते थे, अभी बाबा आएगा मुरली चलाएगा, बाबा आएगा मुरली चलाएगा। तब से लेके सिर सीधा ही रहता है, क्योंकि बाबा को देखना है। ऐसे जो बैठता है ना जैसे कोई चिंता में बैठे है। तो एकदम तब से लेकर के एकाग्रता। शिव बाबा आएगा, ब्रह्मा बाबा में हमको दृष्टि देगा। और एक बात हमको बताई कि अगर आप आत्मिक स्थिति शिव बाबा की याद में नहीं है तो बाबा नहीं आएगा आपसे मिलने। तो हम लोग दिल्ली से ट्रेन में इतना शिव बाबा को, शिव बाबा, शिव बाबा, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो ब्रह्मा बाबा को भी पता लग जाएगा कि इसको देवान है। तो आत्मा हूँ मैं, शिव बाबा इतना अभ्यास हो गया। मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो आप लोगों का बाबा से प्यार है, पर कुछ हमको फंडामेंटल क्वालिटीज योगी जीवन की बनानी पड़ती है। और वो क्या है? आत्मिक स्थिति, एकाग्रता। तो ये शुरू से लेकर के अगर हमारे गुण होते हैं ना बचपन से, तो बाबा के सामने ऐसे जाओ
जैसे आप बहुत भरपूर हैं। पहले जाते थे दुखी हैं, लेना है, अभी जाते हैं कि हम आपके तो संतान हैं, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता के बच्चे, और दुख में बाबा के पास जाए तो क्या संबंध में कमी है कि दुख हरता, दुख नहीं दूर कर रहे, सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये शुरू से ऐसा संबंध बनाओ, माता पिता बाप दादा। पता है ना बाप दादा क्यों कहते हैं? किसको पता है? क्यों कहते हैं बाप दादा? आज पता है? नहीं पता है? बाप और दादा क्यों कहते हैं? Bap Dada is Shiv Baba and Brahma Baba combined. ये हिंदी समझ रही है? समझती है पर A बोलती little bit. The essence, yes. शिव बाबा ब्रह्मा तन में जब आते हैं तो माता पिता भी कहते हैं और बाप दादा भी कहते हैं। समझा? तो किसकी संतान हूँ? हैं आप सभी शिव बाबा के बच्चे हैं सभी? सब नहीं बोल रहे हैं आज। तो शिव बाबा के बच्चे सागर और दाता, दाता के बच्चे कैसे होते हैं? हमारे भंडार भरपूर। हमें है, देखो आत्मा स्वरूप है, वो सागर है। क्या समझा? जब योग में बैठते हैं, बाबा मैं अशांति स्वरूप हूँ, आप शांति के सागर, ऐसे कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं शांति स्वरूप हूँ, आप शांति। ऐसे कनेक्शन जुड़ जाएगा। कोई मेहनत नहीं है योग में। मैं स्वरूप हूँ, वो सागर है। फिर कई बार बाबा कह देता है कि मास्टर सागर। तो ये अभ्यास करो। शुरू शुरू में बाबा ने, जब दादियाँ इस तरह से सभी दादियाँ छोटी छोटी छोटी, आप लोगों ने पिकेटिंग वाला पिक्चर देखा है? कितने छोटे छोटे यार, छोटे बड़े सब। तो आज खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। बाद में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग सब वो मंडली के हो। देखो हमारी भावना ये सब करने की क्या है कि आप बाबा के पास आए, ज्ञान मुख वंशावली है ना, माउथ प्रोजनी, मुख वंशावली बाबा के बच्चे हो, तो आपको ये इतना नेचुरल, मेरे माता पिता, देखो रिट्रीट में आप आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, पर बाबा का सही परिचय, उसका एक एक गुण, उसकी एक एक शक्ति, उससे एक एक संबंध,
तो क्या होगा कि एक बड़े नेचुरल रूप से बाबा तो कई बार साकार बाबा कहते थे योग शब्द निकाल दो, याद शब्द रखो। याद, याद। हाँ, हमने तो पहले लेसन में सीखा, पहला लेसन क्या माता पिता से योग किया जाता है, बाप से योग करते हैं, योग करते हैं, माँ से योग करते हैं कि याद करते हैं? करनी पड़ती है या रहती है? तो फिर बाबा की याद क्यों नहीं रहती? करनी नहीं पड़ती है, रहती है। अगर इस तरह से, जैसे मेरे को शुरू से है, मेरा पिता ही अनादि एक ही बाप है, तो अंदर में याद रहती है। तो आप लोग मेहनत नहीं, बहुत सरल तरीके याद रहती है, बाबा मेरे साथ हैं। तो ऐसा दादियों में, अंदर में और मंडली में और क्या करते हैं? तो मेरे मन में ये भावना होती है, जब भी मैं बाबा के बच्चे इधर उधर से आते हैं, देखती हूँ कैसे आपको सदा ये फीलिंग रहे कि हम बाबा के मुख वंशावली बच्चे हैं। और स्वरूप है हम। तो ये जो अपनापन माता पिता ने हमें एडॉप्ट किया है, तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं, एक ज्ञान होता है, एक शिक्षा होती है। स्कूल में टीचर पढ़ाएगा और माँ बाप शिक्षा देते हैं। माँ बाप कभी नहीं पढ़ाएंगे, चलते फिरते ये राइट है, ऐसे करो बच्चे, ये शिक्षा देते हैं। तो हमको बाबा शिक्षा देके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं शिक्षा देके? बहुत अच्छा, राइट, लायक बना रहे हैं, वर्दी, योग्य बना रहे हैं, लायक भी बना रहे हैं, योग्य भी। तो बाबा की शिक्षाएं सुनते सुनते ऐसे, हाँ, हमारी दादी है मंडली में शिक्षाएं, गुरु के पास जाते हैं ना, तो वो पढ़ाते नहीं है, टीचर पढ़ाता है, वो कमाई के लिए। माता पिता पढ़ाते हैं, हाँ, कि जिस स्कूल का है उसका नाम बाला करें। और फिर जो गुरु पर आते हैं, कभी कभी मुरली सुनते हो ना, तो फील करो, बाप सुना रहे हैं, टीचर सुना रहे हैं, गुरु सुना रहे हैं, तीनों संबंध है ना। फील करो, ये जो बाबा ने कहा ना, ये बाप ने कहा, ये जो कहा ना वो टीचर ने कहा, ये जो कहा ना सदगुरु बाबा ने कहा। तो उससे क्या होगा? देखो, याद आपकी तीनों संबंधों से याद रहेगी, बाप के रूप से भी,
टीचर के रूप से भी, गुरु रूप से भी। तो ये जो फाउंडेशन है संबंध की, उससे प्राप्ति बहुत है। तो बाबा सबको प्यार करते हैं, लेकिन अगर विशेष प्यार चाहिए तो कोई विशेषता होनी चाहिए। बाबा, हम जब जाते थे बाबा के पास, छोटे छोटे थे, तो हर एक को देखता था, मुझे तुम बच्चों पर बहुत गौरव है। जब हम सोचते थे भाई कुछ ऐसा ही, अपनी विशेषताएं कुछ ऐसा हो जो बाबा को गौरव हो कि ये देखो कितनी मेरी अच्छी कितनी अच्छी बच्ची। तो एक देखो, बगीचे में बगीचा माली जाता है, घूमता है, तो एक गीत भी है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। पर बढ़िया बढ़िया खिले हुए फूल है, वहां रुक जाता है, ज्यादा रुकता है। सारे बगीचे से उसका ही बगीचा है ना। तो हर एक मन में ये सोचे, मुझे खिला हुआ सुगंधित फूल बनना है। बाबा हमारा बागबान है, माली है। तो आप किसी को देख के पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आप बाबा से जो हमारा संबंध है उसके आधार पर पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए मेरी भावना यही है कि आप लोग सब एक नेचुरल और मजबूत, हाँ, पक्के। पूछते हैं भाई कच्चे बच्चे हो पक्के बच्चे हो, क्या कहेंगे? पक्के बच्चे। पक्के मतलब स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। तो जब ये देखो पिकेटिंग हो रही है, सभी माँ बाप गाड़ियों में बैठे हैं, कार में बैठे हुए हैं, बहुत धूप का टाइम है, बाहर आते हैं, चलो बच्चे चलो। इतनी आपसे भी कई छोटे छोटे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बाबा नहीं थे, बाबा ऊपर 5वीं मंजिल से देख रहे थे नीचे, तुमको चलना ही है। तो एक छोटी कहने, मेरे को मत छुओ, नहीं जाना है। सब हैरान कि इतनी छोटी छोटे क्यों नहीं जाना चाहते। तो एक ये भी इतनी मजबूती हो अपने में। मैं जब ज्ञान में आई तो शुरू में तो कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर उनको पता लगा कि ये तो सोच रही है मैं ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी, तो बहुत मुसीबत की बात है। समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो इनको कौन की रोटी खिलाएगा, बड़े हो जाएंगे तो। हमने तो अपने मन में ये सोचा था कि यही हमारा जीवन है। बाबा क्यों, बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, मुझे भी वही, मेरे बाप जो कर रहे हैं वही करना है। उसके लिए फिर पवित्रता की, फिर पवित्र जीवन आ जाती है, लक्ष्य मिल जाता है। तो सभी का एकदम जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो। क्योंकि समय क्यों व्यर्थ करें ना, संकल्प क्यों व्यर्थ करें।
अच्छी तरह यूज करें शुरू से लेकर के। तो इस तरीके से बाबा का संदेश मिलता रहा। और बहुत सारे परिवार, बाबा हम भी यही करना चाहते हैं, बाबा हम भी यही करना, आ जाओ, सभी आते हैं। तो पहले ओम मंडली थी, सिर्फ ओम ध्वनि करते थे बाबा, और आस पड़ोस सब तरफ से सब आ जाते थे। फिर गीता पढ़ने लगे, क्योंकि ज्ञान है क्या आखिर में, सृष्टि चक्र क्या है, झाड़ क्या है, टाइम लगा ना समझने में। धीरे धीरे सब बाबा को समझ में आया। तो बाबा गीत लिखते थे, मामा गीत गाती थी। तो इस तरह से जैसे आपस में एक परिवार बनता गया, परिवार बनता गया। अभी 300 का, 200, 250 का खाना बनता है। उस समय भी 250-300 का बनता था। तो दादी गुलजार कहती हैं, इतना बड़ा पतीला होता है, 300 का खाना बने तो बहुत बड़ा पतीला होता है। तो उनकी भी ड्यूटी लगती थी पतीला साफ करने। आजकल तो बेचारे 2-3 भाई लगे रहते हैं, कोई उस तरफ जाता ही नहीं है। कोई मतलब ये नहीं भाई चलो हम भी जाके छोटे मोटे बर्तन तो मांज ही दें। पकाने वाले पकाते हैं, बर्तन निकालते जाते हैं बेचारे, और खाने वाले मौज से खा रहे हैं। तब ऐसा नहीं होता था। तो वो कहती है दादी गुलजार, हम पतीले में खड़े होके 2-3 बच्चे उसको साफ करते थे, क्योंकि पतीला इतना बड़ा था तो अंदर खड़े हो जाते थे। उनके पास बस थी एक, उसकी सफाई करने के लिए नीचे से जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो छोटी छोटी थी, सब कुछ करते थे। आज जैसा नहीं था। सफाई करनी है, बर्तन साफ करने हैं, सब करने, सब यूज कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? खुद ही कहना चाहिए जाके, हाँ मैं भी जरा, और कुछ नहीं तो टेबल ही साफ कर दूं डाइनिंग रूम के। किस किस ने कर्म योग किया? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कर्म योग किया? हाँ मेरे को तभी तो हुआ। पहले दिन सेटअप करना था तो कोई ऐसा आया ही नहीं। हमने सोचा सब एक दिन पहले आएंगे, कोई नहीं आया खास। तो बहुत काम था। राम भाई आए हुए थे, कई भाइयों ने बहुत मदद की, बहुत मदद हुई, तभी हो भी सका ना। तो हम लोग जब बड़े हुए तो ऐसे हुए। अभी तक भी यज्ञ में भी और कुछ नहीं है, जाके सब्जी काट दो, और कुछ नहीं है तो पूरा हो गया तो काउंटर साफ कर दो, और नहीं वो तो खा पी के चले जाते हैं, ये इसकी डिपार्टमेंट है, वो करे। पर खाना तो सबने खाया ना, घर तो सबको साफ चाहिए ना। कितना अच्छा लगे जब हर एक कहे, हाँ मैं भी वैक्यूम चलाता हूँ, कितना अच्छा लगे। इन दोनों को ही वैक्यूम करना है। आज की जो प्रजा बन रही है वो ऐसी। हम ये चाहते हैं कि आप लोग ओम मंडली की तरह बड़े हो। समझा? तो अगली बार जब आएंगे ना, हाँ तो बच्चों को भी काम देंगे।
कर्म योग। हाँ। Some are happy. क्या है कि देखो, कल इसलिए खास वो जो कर्म योग वाला गीत था ना, सुना आपने? मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। फिर डांस करो उसके साथ तो और ही अच्छा है। किया था ना? क्योंकि हमारे शरीर की हर अंग सेवा में लगना चाहिए। क्योंकि हिंदी में भाषण कहते हैं लेक्चर को, और बर्तनों को भासर कहते हैं सिंधी में। तो कहते हैं जितने भाषण साफ करेंगे उतना भाषण अच्छा होगा। क्योंकि आप जो बोलेंगे वो रियल लगेगा, बाकी आप बैठ के पंडित की तरह सुना रहे हैं। मनसा सेवा, वाणी की सेवा और कर्म की सेवा। नहीं, एक कहानी सुनाते हैं कि एक प्रीस्ट था, मतलब क्या बोलेंगे, प्रीस्ट था। अच्छा, और एक किसान था। दोनों भगवान के पास पहुंचे। तो किसान को बाबा भगवान ने बहुत प्यार दिया, पहले उसको बुलाया। तो प्रीस्ट ने बोला, भाई मैं तो सारी लाइफ आपके गीत गाता रहा और इसको तो टाइम भी नहीं था, इसको पहले बुला लिया मुझे। कहते हैं इसने जो बीज बोया, मेहनत की, हजारों को सुख मिला। अगर किसान मेहनत न करे तो हम सबको कहाँ से भोजन मिलेगा ना। और किसान प्रीस्ट को बोला कि तुम तो भाषण ही करते रहे। उसने सुख दिया। ये कहानी रियल। कहते हैं भगवान के पास वो प्रीस्ट बेचारा, वो तो सोचा मैं तो तैयार ही हूं ना। बहुत महत्व है यज्ञ सेवा का, बहुत महत्व है। शुरू से बाबा थे, हम छोटे थे, मैं पहुंचती थी, बाबा पूछते थे, अच्छा ग्रुप लेके आए हो, 20 का लेके आए हो? तो हम लोगों को एक दिन सारा दिन खाना बनाना है, नाश्ता लंच डिनर। दूसरे दिन बहुत सारे तकिए बनाने। आजकल तो रेडीमेड तकिए ना, हम दिनों में बनाते थे रुई को। फिर कहते थे कि गद्दे बनाने हैं, तो गद्दे बना के देते थे, पर उसको इतनी बड़ी सुई होती थी, मुझे अभी भी याद है, उसको टाके लगाते थे। आप पूछो हमको क्या नहीं आता था। एक दिन सारा घर का अनाज साफ करना है। मैं कला बहन को यही कह रही थी कि आप सभी मिलकर के करो, कि आज का दिन अच्छा हम ये करेंगे, आज का दिन हम ये करेंगे, इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि सिर्फ दिमाग का काम, सिर्फ मुख का काम, एक संतुलन होता है कि हाथ भी चले, मुख भी चले, पैर भी चले। तो ओमनली और यज्ञ कि ऐसी फीलिंग हम बनाएं, चाहे वो सेंटर है, चाहे घर है, चाहे रिट्रीट प्लेस है, जैसे ये है। जब कोविड हुआ शांतिवन वगैरह में, तो आपको पता है सेवाधारी भी है, नौकर भी है।
पर कोई आ ही नहीं सकता था ना बाहर से, तो सभी कोई इतना झाड़ू लगा रहा है, कोई रोटी, हमको फोटो भेजते थे सब बैठ के, कहते वो दिन इतने अच्छे थे। तो इसलिए इतना नेचुरल बाबा से योग हो, बस बैठो तो माँ बाप की याद, माँ बाप की गोद में। और सबसे बड़ी बात, मीठे 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 मीठे, कौन है मीठा मीठा? कभी कड़वा नहीं। रियली बहुत सारे हैं। वाह, होता है, देखो कभी टेंशन होती है, और टेंशन भी नहीं करो, हो जाएगा, जरूर होगा, हो जाएगा। और आजकल ऐसे है भी, सेवा भी बहुत है, पर धैर्यता से प्रेम और मिठास, मधुरता बहुत जरूरी है। सेवा के लिए परिवार में, समाज में नम्रता और मधुरता, कोई अहंकार की बात नहीं है। कल गायत्री बहन रॉयलिटी पर बता रही थी, हाँ, बहुत अच्छा बताया, सिंप्लिसिटी, डिग्निटी, और पर नम्रता नहीं। बाबा कहता है, बाबा लिखता था, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सो एंड सो, सेवाधारी। हम सेवाधारी हैं, सेवा का मेवा मिलता है, सेवा का सुख है, सेवा एक बड़ा बड़ा पुण्य है। समझा? तो बहुत मौज भी बहुत करते थे, मतलब गीत गाना, रात के टाइम पर ये छोटे छोटे ड्रामा बना के स्किट करते थे। वतन से संदेशी देख के आती थी, बताती थी, वो कपड़े सिलते थे, फिर वो प्रैक्टिकल करते थे। एक बार ऑपोजिशन वाले आए, बहुत बड़ा गेट था उनका, इससे आधा समझो, तो वो लोग तोड़ने की कोशिश करें, तो सभी बहनें, कोई चकला ले आया, कोई बेलन ले आया, कोई, और ऐसे खड़ी हो गई, और जो करे उसको पीछे से ऐसे मारती मतलब रक्षा भी की उन्होंने। जब भी कोई ऑपोजिशन हो ना, ये लोग खड़े हो जाते, सब बहनें एकदम, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब पार्टीशन हुआ तो बाबा ने बोला, जो भी देही अभिमानी होगा उसकी तरफ कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा। सभी योग में रहते थे, कोई किसी को, और ही गवर्नमेंट इनको अनाज भी पहुंचाओ, सब्जियां भी दो। समझा? तो मेरी यही भावना होती है जब सबको देखती हूँ, कि इनका जीवन और भविष्य ऐसा बने जो पूरा सफल हो। बाबा की श्रीमत क्या है, हर बात को पूरी तरह समझे। रोज इनको कहती हूँ कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती रहे ब्राह्मणों की, जिसमें उनको सब यज्ञ क्या है, श्रीमत क्या है। और क्या करना। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई निकाल रहा है, कोई फोटो वोटो निकाल रहा फोटो है। वोटो निकालो। We can show them in Zoom. There, no?
टाइम को देख रहे हैं क्योंकि आज काफ़ी प्रोग्राम है। तो हमारा ये था कि 12 बजे जाएंगे, थोड़ा चक्कर लगाना प्रॉपर्टी में, और फिर बाहर पिकनिक है। बहुत बहुत उन्होंने व्यवस्था की हुई है। तो आप लोगों ने परेड के बारे में बताएंगे, जो युवा भाई हैं उनके पेरेंट्स, पर सभी खा कर के जाओ, क्योंकि क्या होगा ना, नहीं तो कब लौटेंगे, बेचारे खिलाने वाले भी बैठते हैं, फिर शाम की तैयारी करनी पड़ती। तो ये रिक्वेस्ट है कि जिनको भी जाना हो वो खा के ज़रूर जाओ, नहीं तो सारी व्यवस्था जो है ना, तो इसलिए सब कुछ टाइम पे करेंगे। तो मंडली के कुछ गीत है नहीं, राम भाई? दीदी ने आज फूलों वाला गीत दिया क्या ना, तेरे फूलों से। ओम शांति। कुछ इंग्लिश में भी बता दीजिए 5 मिनट, बहुत सारे हमारे। A very natural relationship with parents, Baba. And always, always, when you go in front of Baba, take drishti, just smile. Baba, I am lucky, I am full. He will give his parents now whatever needed. Sometimes you are limiting what you want. I don't. I said maybe he wants to give more. Maybe he wants to do more in my life, and I am only asking for limited desires to be fulfilled. He wants to create my more fortune, and I am saying, Baba, I want this. He fulfills, but maybe he wants to give more, right? So I just go in front of Baba. No desires, no sorrow, no problem, no worries, no request. Baba knows, right? Main thing is parents, is my teacher and also Guru. So that natural relationship, that's what I. And how this is yajna, and to sustain yajna. It is our mind, it is our words, our body, and also whatever. मैं तो आती हूँ यहाँ पर, भोग लगाओ भाई, इनका भंडारा भर दो, कितने चावल चाहिए, कितनी गेहूं चाहिए, जैसे इन इंडिया, यू नो। फिल द भंडारा, बाबा भंडारा। मैं हमेशा इनको कहती हूँ भी कितना खत्म है बताओ, मैं उतना ही भर के जाती हूँ। सब यज्ञ, because many young generation, they don't know what is yajna. We know little bit. So humility and service, whatever we can do. Om Shanti. Thank you, Didi. Let's have one hand. Thank you, Didi. How are you all feeling? Do you want to get up or stay here? Some of you might be struggling, right? Sitting on the floor after a long time. Didi, we have a question for you.
when Brahma Baba, one is that he used to come in his true hall and Shiv Baba used to come and speak Murli. But just Brahma Baba only, if he's sitting in the room and for example, we are next to him sitting like that, what he used to talk about, what kind of entertainment he used to have with children. Brahma Baba. Yeah, one is entertainment, but other is, Baba, when he became Avyakt, was 93. But one practice Baba has, which I haven't done in my life, that's why I always recommend Baba, as soon as Murli finished, go for a long walk every morning. Because sometimes Brahmins don't do enough exercise. They eat Brahma Bhojan, they do yoga, then they eat and then they do yoga. We have one brother in New York in Harmony House. His name is Eric. And we have quite about 1 acre land. So we have people who come to cut grass. But he maintains whole garden. He says, this is my health club. Why I'm going to pay in a health club? So he does a lot of gardening with a lot of love. So one is entertainment, but other is also how to keep yourself well, is very important. But of course, you all know he played badminton very much. We played with him too. And different songs, right? Which are yagya songs, you can say. So I'm sure many of us sing song, right? Maybe not in front of everyone, but in the room, right? How many of you sing song on your own? Mostly. Chalo, So milke. today we all will sing together. How is that, right? Bachpan I'm ke sure din. everyone heard Murli songs and all those. Maybe even those who don't understand Hindi also knows few words of song, right? Yeah. We have mics. Adip, हाँ. कौन? आप लोग एक रखो. आनंद भाई कम. Tejaswini, come this way. Chalo, shuru Yeah. karo. So Didi, remember this song about Phoolon se bhi pyar, kaanton se bhi pyar. We're not gonna sing the whole song because none of us know whole songs. We'll do little. Okay? You all will join? So actually one is from Path of Bhakti, which was, and one is Baba's song also. Love We'll just flowers, sing one song of Path of Bhakti. You all can join us, okay? Whatever you all know. तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता, दुनिया के पालनहार, दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार. And Baba's song. चुन चुन के जग के कांटे, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई है. चुन चुन के जग के कांटे,
फूलों की माला बनाई है, बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया, तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई। आज का मुरली सॉन्ग ये कौन आया सवेरे कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये दिल को पूरा दुनिया तभी तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, मिटा ना सकेगी जिसे बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशिया पा लिया है। इधर आ जाओ आप लोग। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें रहनुमा पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हम। किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे हमको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे चिराग जैसे। One interesting song is this song is about like this is path of bhakti song, but it's like it's saying to God that you cannot hide yourself anymore. You have to be. जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है, यूं ना छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। Can we have battery of this? मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का अंधेरा जागे सूरज की पहली किरण से घनघोर सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप मिले कभी छाव मिले लंबी से जगर चले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले कितना मीठा कितना प्यारा ओ बचपन के दिन भुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना आज हंसे कल रुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना लंबे हैं जीवन के रास्ते आओ चले हम गाते हंसते दूर देश एक महल बनाए प्यार का उसमें दीप जलाकर बुझा न देना आज हंसे कल रुला न देना ओ बचपन के दिन भुला न देना न तारे रहेंगे न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे न ये चांद होगा बिछड़ जा चले जाए तुमसे कहीं तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे नए चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे नए चांद होगा Now is children's turn. English song, okay? आदि Yeah, गाए। Adi, come on. Your आदि wish. गाओ। Gray. You never know, dear, how much I love you. Never take my sunshine away. You are my sunshine. When skies are gray, you only know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. You all don't sing? They can sing little one. Okay. चलो एक और. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है. तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. ऐ मालिक तेरे बंदे हम. महफिल में चल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए. महफिल में चल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए. चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर रहे, यही सजा है दुनिया में. यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए. महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए. दीदी, one line from you. आदि भाई गाए. Yeah, Adi bhai. चलो. And last song with oh, तो let's take this one. क्या गाना है? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम,
चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर We have those two है। angels. You want to sing two line one? कायल मन का पागल पंछी उड़ने को गाने को बेकार कितनी नहीं वो टाइम Like moths plunging towards the flame, we journey to our homes again. Like flowers open to catch the sun, our minds are open to see the one. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh, Baba. Dearest Baba. You sowed in us the seeds of time. You showed us how the seasons rhyme. You found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh, Baba. Dearest Baba. शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है।
कौन सा वाला? ये वाला जाने सबका क्या दो। दिखा? हाँ। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिए समाए, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा हर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। Thank you. Yeah? Which song you know? Hmm? Which song you know? Hmm? Next time you have all three have to sing, right? All those who didn't sing, Tejaswini, you didn't sing, right? Okay. Did you all like Mandali? Yeah. How many of you like it? So next time we have longer time. Today have many things, right? मजा है ना? हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो भी यज्ञ में सबको मिला आप लोगों को भी मिले। बहुत अच्छा है। Om Shanti. So, यज्ञ है, परिवार है। further program, I just want to know how many, especially not the senior citizen, but the young ones, how many of you are interested in going in the parade and 4th of July? Can I see your hand? Even parents, how many of you are interested? Because Can you stand up, please? if children go, parents have to go. Can you stand up? How many of you interested? So, are you all interested in going in parade? Yeah? Okay, so all these kids and youth, if they are going, their parents has to go also. One parent at least. Okay, अभी ना ये पहले No, 1 minute, में just. So all those who stood up right now, after we finish, you all come in the corner, okay? To discuss about it, how we're gonna go. Let's have a moment of silence and we finish. And the rest of you, are you all ready to go for new property? Yeah. yes. So we'll others will go to new property. We have little tree planting, and then we'll just go to visit the new property and then go for picnic, right? And those who are going for parade, they don't have picnic. Yeah, you all have to just eat and run. That's it. You can't enjoy picnic and parade together. Okay, let's have a moment of silence. Finish it. अभी तो टाइम है परेड में। Let's experience the way Bab Dada used to come and just immerse Bab Dada and be sitting in front of Baba and having experience.
Okay, so those who will be going in property, they all will have your water break, and if you need to go 5 minutes, you can go and come back right here. And those who are interested in going in parade, go in that corner because you will get some directions for that. Om Shanti. Those who gave their name for going to parade, can you come to this corner?